Assalamu alaikum. In the last lecture we discussed about the cost function, and in this lecture we will discuss the properties of the cost function. So we discussed that the cost function is basically R, W and Q. So we derived this cost function, if you remember, and what was the cost line? C is equal to RK plus WL, and what was the production function? Simple, L 0.5, the capital 0.5. So this is our production function. That was our production function, and this was our cost line, and this is of course general form of the, and then we derived it. Why we are discussing about? Actually we are discussing because we will use this cost function and we will prove these properties. So these properties are very important to understand how the cost function basically behaves. And first property is saying that basically the cost function is homogeneous of degree 1 in input prices. So if they are homogeneous of degree 1 in input prices, so what will be, we will have in the cost function, if we will, prices are increased by lambda, so degree 1 mean the lambda will be outside and the cost function same will be repeated. It is showing by the degree 1 in input prices. अब देखते हैं कि क्या ऐसा होता है कि अगर हम cost function में prices को increase कर दें lambda से, जैसे let's suppose 5% increase हो गई capital की price भी और 5% increase हो गई labor की price भी, this is wage, तो cost function जो है वो आपका homogeneous degree 1 होगा, यानी कि उसमें cost में बिल्कुल same percentage के साथ इजाफा आएगा. तो हम देखेंगे कि वाकई it is happening. So the lambda power 0.5, lambda power 0.5 will lambda power 1 mean degree 1. और आप देखेंगे Q R power 0.5, W power 0.5 जो है वो रिपीट कर गया. दिस इज कॉस्ट फंक्शन और बिल्कुल सेम परसेंटेज के साथ आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई. So this is the first property. The second property is a non-decreasing in input prices and output level. It's very rational behavior. कि आपकी जब इनपुट प्राइसेस बढ़ेंगी तो कोई वजह नहीं है कि आपकी कॉस्ट में कमी हो. इसी तरह से अगर इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर आउटपुट लेवल तो कोई वजह नहीं कि आपकी कॉस्ट में कमी हो. यू हैव टू इंक्रीज इट. ऑल्दो द रिलेशनशिप, द बिहेवियर, द पेस ऑफ द इंक्रीज शुड बी डिफरेंट, बट दे विल इंक्रीज इफ यू आर इंक्रीजिंग द इनपुट प्राइसेस और आउटपुट लेवल. So how can we check it? How can we prove it? So just simple, we will take the cost, partial derivative of the cost with respect to the input prices W. Cost, the input prices R, and the cost with the output. So if they are increasing, non-decreasing mean they will not decrease. That's mean they will not decrease, they will never decrease. या तो वो अपना सेम बिहेवियर रख रहे होंगे या वो इंक्रीज हो रहे होंगे, मीन दे विल नॉट डिक्रीज. सो या तो वो इक्वल टू 0 होंगे उनका डेरिवेटिव, या ग्रेटर देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा इन ऑल केसेस. नाउ वी आर सिंपल टेकिंग द डेरिवेटिव. लेट्स सपोज इफ वी आर टेकिंग द बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ दिस कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू लेट्स सपोज R, सो वी कैन से दैट the 0.5 in the base and the Q are minus 0.5 and W 0.5. So in this condition basically the positive answer. And same if we will take the derivative with respect to the W, so we will get also the same answer 0.5 Q and R power 0.5 and W power 0.5. So in both condition both are the greater than 0. So what is happening here, that we can see that they are non-decreasing in the input prices. Now we come on a very important property, the concave in input prices is very important. It's technical one. We have to think about it, what is happening here. Concave in input prices, that's mean they are saying that if the
कॉस्ट इज़ द फंक्शन ऑफ द इनपुट प्राइसेस, और किसी एक इनपुट प्राइसेस के अंदर अगर कोई इजाफा होता है तो कॉस्ट जो है वो एज ए स्ट्रेट लाइन इंक्रीज़ नहीं करेगी, एज ए कॉन्केविटी बिहेव करेगी। कि बिकॉज लेट्स सपोज अगर किसी की वेज में या किसी के इनपुट प्राइसेस वेज में 10% इजाफा होता है तो कॉस्ट जो है वो 10% के साथ इंक्रीज़ नहीं कर जाएगी, वो उससे कुछ कम बिहेव करेगी, कॉन्केव बिहेव करेगी। सो दैट्स मीन, अब सवाल ये है कि इसको हम समझ कैसे सकते हैं। लेट्स सपोज वी आर सेइंग दैट दिस इज़ द कॉस्ट, एंड हम किसी एक वेज रेट पे कॉस्ट को एवेल्यूट कर रहे हैं। अब अगर आप किसी एक वेज रेट पे कॉस्ट को एवेल्यूट कर रहे हैं तो बेसिकली तो कॉस्ट तो आपकी इस तरह से है स्ट्रेट लाइन के अंदर। स्ट्रेट लाइन में देखें आपकी कॉस्ट इस तरह से है, बिकॉज आप कह रहे हैं कि WL प्लस RK। तो RK जो है वो अगर आपकी W में इजाफा होता है तो आप एक स्ट्रेट लाइन के तहत इस तरह मूव करेंगे। तो द टोटल कॉस्ट मे बी बिहेव लाइक दिस, but the cost function, because it's a combination of the capital, labor and output, so it will behave like a concave behavior, and it will like this, concave. So it's a rational behavior कि अगर किसी एक इनपुट की प्राइस में इजाफा नज़र आता है तो प्रोडक्शन मैनेजर विल शिफ्ट विद द अदर वन, लेकिन उसको एक कॉम्बिनेशन को मेंटेन करने के लिए वो बहुत ज़्यादा जल्दी शिफ्ट भी नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी उस टोटल कॉस्ट को अडॉप्ट भी नहीं करेगा। तो उसका जो बिहेवियर होगा वो कॉन्केव होगा। तो कॉन्केविटी को शो करने के लिए मैथमेटिक्स में एक और तरीके से भी हम बात कर सकते हैं, जिसके अंदर हम ये इक्वेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। वो कह रहा है लेट्स सपोज देयर आर 2 वेजेस। दैट्स में अगर मैं उसको और आसान करें कि वेज 1 जो थी वो $10 थी, सिंपल वेज, और वेज डैश जो है वो लेट्स सपोज $15 हो गई, तो वेज बढ़ गई है। अब वेज आपकी जो मिसाल के तौर पे इस पॉइंट पे अगर मैं इसको आसान करूं और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यहाँ पर आप देखें कि $10 थी और यहाँ पर आप देखें कि $15 हो गई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वी आर सेइंग दिस कि हम एक कॉस्ट फंक्शन में एक वैल्यू डालते हैं जिसके अंदर हम इन दोनों वेजेस का वेटेड एवरेज ले लें और वेटेड एवरेज लेने के बाद उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करें। टी एक वेट है, 1 माइनस टी इसका अदर वेट है, और टी यू नो डैट की जो टी की वैल्यू है वो 0 to 1 के दरमियान है। और यहाँ पे उसकी वैल्यू डालते हैं, यानी कि हमने कहा कि भाई एक हायर वेज एक लोअर वेज दोनों का वेट रख के, और हमने इनपुट प्राइस R रखी और आउटपुट लेवल डाला, और हमने उसकी एक यानी कि वेटेड वेजेस की अगर हमने कॉस्ट कैलकुलेट करी, वेटेड वेजेस की जो कॉल की वो यहाँ पर कहीं होगी, तो वो ये पॉइंट होगा। वो पॉइंट तो आपका कॉस्ट लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर जाएगा, दिस वन। इसको अगर मैं C स्टार कह लूँ तो ये C स्टार। लेकिन अगर मैं उन दोनों वेजेस का अलग अलग कॉस्ट लूँ तो वेटेड एवरेज जो है वो लो नज़र आएगा मुझे, कि एक मैंने W डाल के पूरी कॉस्ट कैलकुलेट करी, जैसे आप देख रहे हैं ये कॉस्ट कैलकुलेट हुई हुई W डाल के, ये सिंपल एक कॉस्ट है, ये सिंपल एक कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है। ये $10 की वेज जब थी, जब आपने कॉस्ट निकाली, ये $15 की कॉस्ट थी जब। फिर आपने इन दोनों कॉस्ट का जब वेटेड एवरेज लिया तो वो आपका नोट करें कि वो यहाँ होगा, और ये पॉइंट जो है ये आपका अगर C स्टार है तो ये C है, तो C जो है वो C स्टार से नीचे होगा। टोटल कॉस्ट देखें यहाँ पर बढ़ती जा रही है, तो C स्टार ऊपर नज़र आएगा और C नीचे नज़र आएगा। तो ये बात हमें बताती है कि कॉस्ट फंक्शन जो है इनपुट प्राइसेस में एज ए कॉन्केव बिहेव करता है, एज ए स्ट्रेट लाइन बिहेव नहीं करता। और इसका जो मैंने आपको रैशनल दिया, कॉन्सेप्ट दिया, वो ये दिया कि प्रोडक्शन मैनेजर अपने कॉम्बिनेशन को इतनी जल्दी ख़राब भी करना नहीं चाहता। ऐसा नहीं कि वेज बढ़ी तो फ़ौरन उसने 10 एम्प्लॉइज़ को बाहर निकाल दिया,
यस वो कुछ एम्प्लॉइज़ को निकालेगा और कुछ शिफ्ट करेगा किसकी तरफ, कैपिटल की तरफ। और ये भी नहीं कि वेज बढ़ गई तो वो अपने एम्प्लॉइज़ को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रहा, वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। वो कह रहा है बढ़ गई तो मैं अपनी कॉस्ट अडॉप्ट कर लूँगा और ये सारी कॉस्ट मैं प्राइस में डाल दूँगा, तो अल्टीमेटली उसका रेवेन्यू डाउन हो जाएगा। तो रैशनल बिहेवियर, कॉस्ट बढ़ेगी, इनपुट प्राइसेस की बढ़ेगी, उसने कुछ ना कुछ एक्शन करना है, कॉस्ट को डायरेक्टली अडॉप्ट भी नहीं करना, तो कॉस्ट फंक्शन विल बिहेव लाइक द कॉनकेव। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई वी गिव द लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन इन हियर। एक और एक्सप्लेनेशन है कि तो कॉस्ट एंड कॉस्ट कंटिन्यूस इन इनपुट प्राइसेस। तो ये देखें आप, जो इनपुट प्राइसेस में जो है इसका बिहेव जो है वो आपको उसके अंदर बिल्कुल भी डिसकंटिन्यूटी नज़र नहीं आएगी। वो जैसे आपका आर हो या डब्ल्यू हो, वो उसमें एक कॉन्केविटी नज़र आएगी। कोई इसमें आपको मतलब कोई डिस्क्रीट बिहेवियर नहीं है, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। दैट्स में अगर वेज आपकी $1.1 भी बढ़ती है तो भी कॉस्ट के अंदर फंक्शन होगा, एक कंटिन्यूटी नज़र आएगी अपना, वो एक सेम स्मूथ बिहेवियर रखेगा टोटल कॉस्ट के अंदर। एक और प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं कि एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन जो है वो भी होमोजीनियस होंगे। तो सबसे पहले हम एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन को निकाल के देखते हैं। अगर आपके पास कॉस्ट ये है तो एवरेज कॉस्ट क्या बनेगी? एवरेज कॉस्ट बनेगी कि अगर इस पूरी कॉस्ट को मैं डिवाइड कर दूं, इस पूरी कॉस्ट को अगर मैं डिवाइड कर दूं Q से, तो ये मेरी एवरेज कॉस्ट यानी कि R पावर 0.5 और W पावर 0.5। और मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या बनेगी? अगर मैं इस पूरी कॉस्ट का डेरिवेटिव ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू Q, तो वो भी मेरी 0.5 एंड W 0.5 बनेगी। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कंडीशन कि ये दोनों कंडीशन में एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट बराबर आ रही है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्म नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं, ये एक बिहेवियर है R और W का। लेकिन इस दोनों कंडीशन से एक बात साबित हो रही है कि कॉस्ट फंक्शन जो है वो वाकई जो है वो एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट अगेन होमोजीनियस है यकीनन। अगर मैं इनमें से किसी एक में भी अगर लैम्डा का इजाफा करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर लैम्डा जो है वो सेम वैल्यू के साथ, यानी पूरी कॉस्ट आपकी जो है वो उस लैम्डा के साथ इंक्रीज कर जाएगी। लैम्डा जो है वो डिग्री 1 के साथ बाहर आ जाएगा। So these are the 5 properties of the cost function, and I think you were learning from my lectures. So please give your feedback and give the comments if you are learning something from us. So please don't forget to subscribe our channel. Thank you very much.